کھولتے ہی گھر میں غربت دیکھی۔ ابھی 5 سال کی تھی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا، اپنے بیگانے بن گئے۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، مگر ہوش سنبھالتے ہی مفلسی کے احساس نے مجھ کو کملا دیا۔ وقت سے پہلے بڑی لگنے لگی۔ سنجیدہ سوچوں نے بچپن کا لاابالی بچپن چھین لیا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جمع پونجی ان کی بیماری پر خرچ ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ ننھی سی جان کو پالنا تھا۔ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر میری پرورش کرنے لگی۔ والد صاحب ورثے میں صرف ایک مکان چھوڑ کر گئے تھے جس میں ہم لوگ رہتے تھے۔ امی جان نے سخت محنت کی اور مجھ کو پروان چڑھایا، BA تک تعلیم دلوائی اور ہر ممکن خواہش پوری کی۔ جب میں نے BA پاس کر لیا، امی جان سے کہا کہ اب آپ لوگوں کے کپڑے نہ سیا کریں، میں سروس کروں گی، آپ اب آرام کریں۔ بیٹی، میں نے تم کو تعلیم اس لیے نہیں دلوائی کہ تم نوکری کرو، میں چاہتی تھی کہ تم تعلیم یافتہ ہو جاؤ تاکہ تمہارے اچھے رشتے آئیں۔ میری اب ایک ہی خواہش ہے کہ تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ میں نے تیرے جہیز کے لیے کچھ رقم اکٹھی کی ہے، ایک مسحری، 2-4 برتن اور چند جوڑے کپڑے تو دے ہی سکتی ہوں۔ ماں کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں سمٹ کر رہ جاتی کہ میری بھولی امی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آج کل کس قدر مہنگائی ہے۔ جو رقم انہوں نے اکٹھی کر رکھی تھی، اس میں تو شادی کا ایک بنارسی جوڑا بھی مشکل سے خریدا جا سکتا تھا۔ ایک دن میری خالہ اپنے بیٹے احسن کا رشتہ لائیں۔ اماں نے ان کی منشا سنتے ہی صاف انکار کر دیا، بلکہ ان کو بے بھاؤ کی سنا بھی دی کہ تمہارے پاس ہے ہی کیا، کرائے کے مکان میں رہتی ہو اور ابھی احسن کو نوکری بھی نہیں ملی، پھر تم کس منہ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گئی ہو۔ خالہ بیچاری منہ بسوڑتی چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی جان سے کہا، ماں، وہ آپ کی سگی بہن ہے، آپ نے ان کو یوں دھتکارا جیسے غربت کوڑ کا مرض ہو۔ احسن بہت شریف اور اچھا لڑکا ہے، بس غربت ہے، مگر یہ بھی تو سوچئے کہ جہیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور لوگ تو جہیز مانگتے ہیں۔ نہ مانگے جہیز، مگر میں ان کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی۔ بیٹی، یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے بہتر سوچ سکتی ہوں۔ تیری شادی کسی اونچے گھرانے میں ہی کروں گی، تو فکر نہ کر، جا میرے لیے چائے بنا کر لا، میرے سر میں درد ہے۔ امی نے بات ٹالی تو میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ بات یہ تھی کہ مجھے اپنے خالہ زاد سے لگاؤ تھا، وہ بھی مجھ کو چاہتا تھا، ہمارے گھر آتا جاتا تھا اور ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ امی بھی اپنے بھانجے کو چاہتی تھی کیونکہ وہ ان کے سارے باہر کے کام کر دیتا تھا، مگر رشتے کے معاملے میں کافی متعصب تھیں۔ دراصل وہ چاہتی تھیں زندگی کی جو آسائشیں ان کو نہیں ملی وہ مجھ کو مل جائے۔ والدین اگر خود کسی چیز کو ترسیں تو ان کی عمر بھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو ان جیسی محرومیاں نہ سہنی پڑے، لہٰذا امی ہر وقت ایک ہی جملہ کہتی تھیں، میں تو اپنی کنول کو کسی ایسے گھر دوں گی جہاں اس کو کسی شے کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ ایک دن امی پڑوس میں عیادت کو گئی ہوئی تھیں کہ احسن آ گیا۔ میری امی آئی تھی، ان کو خالہ جان نے انکار کر دیا ہے، شاید وہ تم کو اونچے گھرانے میں بیاہنا چاہتی ہے۔ ہاں، احسن کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے دکھ سے کہا، کاش میرے پاس بھی دولت کے انبار ہوتے تو تم کسی اور کے گھر کی رونق نہ بنتی، کاش میں خالہ جان کے خواب پورے کر سکتا۔ وہ جذباتی سا ہونے لگا۔ احسن، تم دل چھوٹا نہ کرو، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، میں مقدر پر یقین رکھتی ہوں، امی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جو میری قسمت میں ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ یہ سن کر میرے خالہ زاد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ افسردگی سے کہنے لگا، کنول، دعا کرو کہ قسمت ہم پر مہربان ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی والدہ گھر میں داخل ہوئی۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ امی نے خوش ہو کر کہا، کنول، خالہ زینب ملی تھی، تمہارے لیے بڑا اچھا رشتہ بتایا ہے، لڑکا دبئی میں ہوتا ہے اور وہ لوگ شام کو تم کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ تم ذرا نہا دھو کر بال سنوار لینا اور اچھے کپڑے پہن کر سامنے آنا تاکہ ان کو اچھی لگو۔ اگر چاند سی ہو تو پھر سجنے سورنے کی کیا ضرورت ہے،
वैसे ही हर हाल में अच्छी लगूंगी, दिल में कहा, मगर माँ के सामने जुबान खोलने की जुर्रत ना हुई। अम्मी खुद घर की सफाई सुथराई में जुट गईं और फिर पकवान बनाने लगी कि मेहमानों के आने से कबल हर शय तैयार हो। थोड़ी देर बाद ही मेहमान आ गए। अम्मी की बातें खिल गईं, बड़ी खुशदिली से खातिर तवाज़ो की और गपशप करने लगी। फिर मुझे इशारा किया, सामने आ जाओ। मैंने अम्मी की इस हिदायत के मुताबिक खुद को तैयार किया था। इनकी पसंद का गुलाबी रंग का जोड़ा पहन लिया था। यूं भी अच्छी सूरत पाई थी। खुद को आईने में देखा तो अच्छी लग रही थी, मगर आंखें उदास थीं। औरतों ने गहरी नजरों से जायजा लिया। वालदा के हुक्म पर मैंने तीनों खवातीन को चाय बना कर दी। इस दौरान इनकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। फिर इन्होंने कहा कि आपकी बेटी हमको बहुत पसंद आई है। अम्मी हर सूरत यहाँ रिश्ता करना चाहती थीं, मगर जब लड़के वाले बात पक्की करने आए तो उन्होंने जहेज की लिस्ट पकड़ा दी, जिसमें रंगीन टीवी, वीसीआर, फ्रिज और दीगर बहुत सी कीमती अशिया शामिल थी। जहेज में इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। हमने बरादरी में इज्जत भी रखनी है। बगैर जहेज की खूबसूरत बहू की भी कोई अहमियत नहीं होती। ये सुनकर अम्मी जान सकते में आ गई। वो रूहानसी होकर बोली, आपको मालूम है कि कंवल का बाप और भाई नहीं है, सर पर मामू चचा का हाथ भी नहीं है कि वो ये मुतालबात पूरे कर दें। मैं बेवा औरत इतना जहेज कैसे दे सकती हूँ? मेरी बेटी खूबसूरत और तालीम याफ्ता तो है। लड़के की माँ की तेवरी पर बल पड़ गए। अगर आपको हमारी शराइत मंजूर नहीं है तो ठीक है, हम चलते हैं। हमारे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ये कहते हुए इन्होंने अपना पर्स उठाया और खुदा हाफिज कहकर चली गईं। अम्मी बस बुत बनी इनका मुंह देखती रह गईं। कुछ दिन सोगवारी रही। फिर खाला ज़ैनब एक रोज आई। इस बार वो एक अच्छा रिश्ता लाई थी। अम्मी खुश हो गईं। चहक कर मुझसे कहा, देखा बेटी, मैं न कहती थी कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। खुदा के घर देर है मगर अंधेर नहीं। इस बार लड़का और इसके घर वाले मुझको देखने नहीं आए, बल्कि उन्होंने अम्मी को बुला लिया कि आप हमारे घर आकर लड़का देख जाएं। वो लड़का क्या था, 50 साल का बूढ़ा था और रणवा भी था। अम्मी ने इसकी सूरत देखकर ही इनकार कर दिया। अब फिर रिश्तों की तलाश हुई। गर्ज कुछ और रिश्ते भी देखे, मगर सभी आए और चले गए। तब कहीं जाकर अम्मी जान को ये बात समझ में आ गई कि जहेज के बगैर बेटी की शादी अच्छे घर में नामुमकिन है। एक दिन बहुत सोच के बाद गोया हुई, बेटी कमल, अगर तुम मुलाजमत करना चाहती हो तो कर लो, मेरी तरफ से इजाज़त है। मैंने अगले दिन से भाग दौड़ शुरू कर दी। अपनी सहेलियों और हम जमातों से कहा, इनके भाई जहाँ सर्विस करते थे इनके जरिए दरख्वास्तें जमा कराईं। आखिर माकूल तनख्वाह पर एक दफ्तर में मुलाजमत मिल गई। माँ मेरी तनख्वाह का 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी और हर 3 माह बाद मेरे जहेज की कोई ना कोई शय खरीद लेती थी। मगर इतनी महंगाई में भला 3000 की रकम क्या मायने रखती थी। नौकरी चलती रही और यूं पूरे 7 बरस बीत गए। अब मेरा जहेज मुकम्मल था। टीवी, वीसीआर, फ्रिज, सोफे, पर्दे, डिनर सेट, वाटर सेट, किचन का तमाम सामान, इस्त्री, गर्ज, हर जरूरत की शय माँ ने खरीद ली थी। अब मैं पूरे 30 बरस की हो चुकी थी। मुसलसल नौकरी की थकन से मेरा रंगोरूप उजड़ गया था और एक मुरझाए हुए फूल की तरह मैं 35 से कम की नहीं लगती थी। खाला ज़ैनब तो रिश्ते दिखाते दिखाते थक चुकी थी और बीमार पड़ी थी। माँ ने 1-2 और रिश्ते वालियों से बात की, तभी एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का बैंक में मैनेजर था। माँ ने सबसे पहले इन्हें जहेज दिखाया। वो राजी हो गए। अब मुझे देखना बाकी था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो औरतें बुझ कर रह गईं, फौरन जाने को हुई और चलते चलते इतना कहा कि लड़की की उम्र ज्यादा है। ये बात सुनकर मुझको हंसी आ गई कि जब कम उम्र थी तो जहेज नहीं था और अब जहेज है तो उम्र ज्यादा है। औरतें गईं तो अम्मा रोने बैठ गईं, मगर मैं रोई नहीं। समझाने लगी कि माँ, इनकी गलत बात नहीं थी, आप क्यों रो रही हैं? वाकई मेरी उम्र ज्यादा है। अभी माँ के आंसू खुश्क हुए थे कि खाला ज़ैनब आ गईं। बेचारी बीमारी के बावजूद किसी तरह आ गई थी कि एक अच्छा रिश्ता था। वो लोग भी साथ आए थे। अम्मी ने इनको अंदर बिठाया और मुझको चाय लाने को कहा। जाने मुझको यकदम क्या हुआ कि मेरा सर घूम गया। कभी माँ के आगे ना बोली थी,
कभी इनके हुक्म अदूली नहीं की थी, मगर इस बार पैमाना सब्र से लबरेज हो गया और इनके सामने जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अम्मी जान के आगे हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं शोकेस में रखा हुआ खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा पसंद किया और जब पुराना हो गया तो गली में फेंक दिया। मैं हरगिज इन हवस परस्त लोगों के सामने नहीं जाऊंगी, ये सारे लोग एक जैसे ही हैं। माँ ने निहायत बेचारगी से मुझको देखकर कहा, बेटी, आखिरी मर्तबा मेरी इज्जत रख ले, फिर कभी किसी के सामने ना जाना। यहाँ मैं पुरउम्मीद हूँ, अब की इनकार नहीं होगा। तभी मैंने जहरखंद लहजे में कहा, माँ, आप तो आज से 7 बरस पहले भी पुरउम्मीद थीं। खैर, अम्मी की हालत गैर देखकर मैंने अपने हवास काबू में किए, बाल संवारे और इनके सामने चाय की ट्रे लेकर चली गई। तभी लड़के की बहन ने लब खोले, अम्मी, लड़की तो प्यारी है, हाँ मगर उम्र जरा ज्यादा है। इसकी माँ ने जवाब दिया, ये हमारे मुनव्वर से बड़ी होगी। ये सुनना था कि मेरे कान झुंझुना उठे, मुझ पर जनूनी कैफियत तारी हो गई। वो तो चली गई, मगर मेरा गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। अपने जहेज की एक एक शय उठा उठा कर फेंकनी शुरू कर दी। साथ साथ रोती चिल्लाती कह रही थी, ये लो लोगों, खाली हाथ ना जाओ, ये सब कुछ भी अपने साथ लेते जाओ। मेरी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ? तुमने कब मुझसे शादी करनी है? तुमने तो मेरे जहेज से शादी करनी है। तुम ही लोगों के मुतालबे पर तो मैंने अपनी जिंदगी के 7 खूबसूरत ख्वाबों भरे कीमती साल जाया किए। अब मेरी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ? मेरा जहेज भी तो ज्यादा है, तो अब मेरे जहेज से करो शादी। मैं इसी तरह बक बक किए जा रही थी, रो रही थी कि खुदा की कुदरत, खाला और एहसन आ गए। मुझको जो पागलों की तरह रोते बिलखते देखा, हैरत की तस्वीर बन गए। आखिर खाला ने मामला समझकर मुझको गले से लगाया और बोली, एहसन दुबई चला गया था, बहुत दौलत कमा कर लाया है, अब हम गरीब नहीं रहे, अब तुम क्यों फूट फूट कर रो रही हो? खाला ने अम्मी को रोते देखकर कहा। एहसन ने आगे बढ़कर माँ को संभाला, बोला, खाला जान मत रोइए, मैं आ गया हूँ ना, मुझको काम बताइए, हुक्म कीजिए, क्या करना है? मैंने कंवल की शादी करनी है और इसका कोई मौजू रिश्ता नहीं मिल रहा है। बेटे, इसीलिए रो रही हूँ। क्या मैं आपकी आरज़ू पूरी नहीं कर सकता? खाला जान, अब तो मैंने रुपया भी कमा लिया है, क्या अब भी आप मुझको कंवल के काबिल नहीं समझती? तभी अम्मी जान ने आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूम ली और कहा, बेटे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर और कंवल पर बड़ा जुल्म किया है, मगर जोड़े आसमान पर बनते हैं, शायद कंवल की किस्मत में तुम ही थे। ये सुनकर खाला का चेहरा खिल गया। बेटे से मुखातिब हुई, एहसन, मैं ना कहती थी कि जो किस्मत में लिखा हो वो जरूर मिलता है, और तुम्हारी किस्मत में कंवल का साथ लिखा था। तब मैं सोच रही थी कि शायद मेरा जज्बा भी एहसन की तरह सच्चा था कि इतनी मुद्दत गुजर गई, मगर हम एक दूसरे के लिए गैर शादीशुदा ही रहे, और आज रास्ते की तमाम दीवारें गिर गई थीं। मेरी रोती आंखें मुस्कुराने लगी और मुझको अपनी किस्मत पर नाज हुआ। अच्छा ही हुआ कि किसी और ने मुझे पसंद नहीं किया, वरना मैं और एहसन कब मिल सकते थे।